So I welcome you back. I welcome you to this lecture, which is on Isbell's zigzag theorem. Isbell's zigzag theorem. So before stating this theorem, I will first discuss dominion of an element. So I will first discuss dominion of an element. Let U be a sub semigroup. Definition of dominion. Okay, definition. शबीर सर आप ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं सर? हाँ, मैंने रिकॉर्ड लगाया इसको. इट इज रिकॉर्ड. तो बाद में मैं आपको इसका ये लिंक भेज दूंगा. So definition of dominion of an element. Let U be a sub semigroup. Be a sub semigroup of a semigroup S and D belongs to S. we say that D is this element D is dominated by S if for all semigroup morphisms beta gamma from the semigroup S to any semigroup T such that U beta is equal to U gamma for all U belongs to U, then this should hold D beta is equal to D gamma. So we say that the element D of S is dominated by U if for any semigroup morphisms beta gamma dominated by U. Okay, this D is dominated by U. Okay, we say that a semigroup an element D belongs to S is dominated by U, not by S. It is dominated by U. Okay, sorry, it's dominated by U. If for all semigroup morphisms beta gamma such that these two morphisms beta and gamma they agree on U, or you can say they agree at each element of U, then they should agree at D also. Then we say this element D is dominated by the semigroup U, sub-semigroup U of a semigroup S. And set of all such elements which are dominated by this particular subsemigroup U of S is called the dominion of U in S. The set of all elements the set of all elements of S the set of all elements of S the set of all elements of S that are dominated by U, dominated by U is called the dominion. Okay, it's dominion of U in S, and is denoted by this notation, and is denoted by dome of U
comma s. So what is this dom of u comma s? So therefore therefore we can say this dom is equal to, therefore we can say this dom means dominion of u in s. Okay, it's equal to those elements of s such that for all morphisms, semigroup morphisms, beta gamma from s to t such that u beta is equal to u gamma for all u in u, for all u in u. Okay, for all u in u, sorry, for all u in u, u beta equal to u gamma for all u in u. This should imply d beta is equal to d gamma. So this is the set of all such elements. That's the definition of dominion of u in s. Now you can easily verify that dominion of u in s is a sub-semigroup of s. It's a subset of s because it consisting the set of elements of s. Okay, it is a subset of s, and you can also see that this is actually a sub-semigroup of s. For this you need to show that it's closed with respect to the multiplication operation, with respect to the multiplication of the semigroup s. So exercise सर yes, सर आप इसे थोड़ा डेफिनेशन को सर दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? डेफिनेशन को, मतलब ये हाँ डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करना ये थोड़ा मुश्किल होगा, इस तरह से एक्सप्लेन करना। मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे कोई एलिमेंट जो यू का नहीं होगा वो इन मॉर्फिज्म से, वो यू से डोमिनेट होगा, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ओके, सो एक्सरसाइज डोमिनियन ऑफ यू इन एस is a sub semigroup of S containing U. Okay, it's a sub semigroup of S and it contains U because all morphisms which agree on U, so they actually agree on the elements of U, all the elements of U. So in particular this dominion, it contains the elements of U, or you can say it here the definition. So those elements of S such that for any two morphisms beta gamma from S to T, u beta equal to u gamma for all u in U implies d beta equal to d gamma. So this also implies that u beta equal to u gamma for all u in U. Okay, in particular, if this u is in U, then u beta, then if u beta equal to u gamma for all u in U, this implies u beta equal to u gamma. So that's actually trivial. That's trivial actually. This U is subset of dominion. So if you fix any element in U, say you take element V in U, okay, then you need to show that that element is in the dominion. So for this you take any two morphisms beta gamma such that u beta equal to u gamma for all u in U, and you need to show that v beta equal to u gamma. That trivially holds because that equality holds for every element of U. In particular, it holds for the element v of U, which you have already chosen. आपको समझ आ रहा है? Yes sir. Are you getting this? So this U is actually subset of, it is subset of dominion. Okay, that's trivial. Now we verified that it's actually a sub semigroup of S. It contains U, but it's also a sub semigroup of S. Okay, solution. So for this we choose any two elements in dominion and we need to show that their product is also in the dominion. So let's choose any two elements. Let D1 D2 belongs to dominion of UNS. We show that D1 D2 also belongs to dominion of UNS. Okay, so तो ये एलिमेंट कब डोमिनियन में होगा? When this element is in dominion.
if for any two morphisms beta and gamma from S to T such that beta and gamma agree at every element of U, you need to show that these two morphisms should agree at this element also. That's the definition of dominion. You need to show that this element is in the dominion. Okay, it is given that D1 and D2 they are in dominion. So to prove this is in dominion, you apply the definition. Definition means आपको दो morphisms लेनी है बीटा एंड गामा from S to T such that U beta is equal to U gamma for all U in U. और आपको प्रूव क्या करना है, D1 D2 बीटा इज इक्वल टू D1 D2 गामा, क्योंकि आपको प्रूव करना ये जो एलिमेंट है ये डोमिनियन में है. Okay, so let's choose any two morphisms. Let beta gamma be any two. तो जब भी मैं मॉर्फिज्म की बात करूंगा इट मीन्स सेमी ग्रुप मॉर्फिज्म. ओके, तो सेमी ग्रुप मॉर्फिज्म मीन्स दिस टी इज अ सेमी ग्रुप. टी इज अ सेमी ग्रुप. सो या यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी करूंगा सेमी ग्रुप मॉर्फिज्म्स सच दैट U beta is equal to U gamma. Now look at this element D1. D1 is in dominion. आप इस पर डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये डोमिनियन में है. और आपके पास क्या है, आपके पास बीटा गामा मॉर्फिज्म्स है सच दैट U beta equal to U gamma. व्हाट दिस विल गिव, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ इसका आंसर. U beta, okay, nice. D1 beta is equal to D1 gamma and also D2 is in dominion. So and D2 beta is equal to D2 gamma. मगर आपको प्रूव क्या करना है, प्रोडक्ट डोमिनियन में होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है. तो इसके लिए हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे. सो दिस इम्प्लाइज D1 D2. अब मैं डायरेक्ट इस प्रोडक्ट की इमेज निकालूंगा और मैं मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा. इट्स इक्वल टू D1 बीटा इनटू D2 बीटा बिकॉज बीटा इज मॉर्फिज्म. Okay, now this one D1 beta it's equal to D1 gamma and D2 beta is equal to D2 gamma. Now again apply the morphism property of morphism because gamma is a morphism. It's equal to D1 D2 of gamma. So that means D1 D2 beta is equal to D1 D2 gamma, which means that D1 D2 it belongs to the dominion of U in S. आपको ये समझ आ गया इसका सोल्यूशन? यस सर. सो दिस dominion of U in S is a sub semi group of S. Is a sub semi group of S. Is a sub containing U. Containing U. So आपके पास अब ये रिलेशन है, ये आपके पास है U is contained in the dominion and dominion is contained in S. ये रिलेशन आपके पास, ये इंक्लूजन आपके पास है. अब यहां पर आपके पास दो चीजें आपको मिल सकती है. एक तो आपको ये मिलेगा मतलब कोई U और S ऐसा होगा, U इज अ सब सेमी ग्रुप ऑफ S. वो U और S की प्रॉपर्टी ऐसी होगी, ऐसे सेमी ग्रुप्स होंगे कि U होगा इसके बराबर, डोमिनियन ऑफ U इन S के बराबर. आपको मेरे पास समझ आ रहा है ये? मतलब U किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट को डोमिनेट नहीं कर रहा है. अगर ये कर रहा है किसी को डोमिनेट, ये खुद के एलिमेंट्स को सिर्फ डोमिनेट कर रहा है. मतलब U के बाहर एलिमेंट जो है S के वो डोमिनेट U से नहीं हो रहे हैं, U डोमिनियन के बराबर है. और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि डोमिनियन ऑफ U इन S के बराबर होगा. ये भी हो सकता है, या तो यहां से इक्वलिटी हो सकती है या यहां से इक्वलिटी हो सकती है. अब अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होगी उस केस में हम कहेंगे U इज क्लोज्ड इन S. तो ये डेफिनेशन आप याद रखिए, U इज क्लोज्ड इन S इफ डोमिनियन ऑफ U इन S इज इक्वल टू U. और सेकंड में क्या कहेंगे, अगर ये इस टाइप के सेमी ग्रुप्स आपके पास होंगे U एंड S विथ U इज अ सब सेमी ग्रुप ऑफ S, अगर उनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि डोमिनियन S के बराबर होगा, उस केस में कहेंगे हम U इज डेंस इन S. U इज, तो इसमें क्या हम कहेंगे हम U इज
क्लोज्ड इन एस, और इसमें क्या कहेंगे हम, U इज dense in S. This is first, this is second, and third one is, third, suppose आपके पास कोई फिक्स्ड सेमी ग्रुप है U इज ए फिक्स्ड सेमी ग्रुप। अब क्या करोगे, अब आप कोई भी सेमी ग्रुप लोगे S, कोई भी सेमी ग्रुप, ये फिक्स आप नहीं कर रहे हो, इसको आपने फिक्स किया है, आपने कोई फिक्स्ड सेमी ग्रुप चूज किया है, ठीक है। सपोज आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स चूज किया विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या सेट ऑफ इंटीजर्स आपने चूज किया विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपने फिक्स कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप फिर कोई भी सेमी ग्रुप एस लोगे विच कंटेन्स यू एज अ सब सेमी ग्रुप, ठीक है। आप इस एस को वैरी करोगे, और जितने भी एस आप लोगे आपको हमेशा यही मिलेगा, डोमिनियन ऑफ यू इन एस इज इक्वल टू यू। यह बात आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर एस दोनों, यहाँ पर आपने यू भी फिक्स किए थे ऊपर की डेफिनेशन में, जहाँ पर आपने बताया कि यू इज क्लोज्ड इन एस, वहाँ पर यू भी फिक्स था, एस भी फिक्स्ड था, और यू सब सेमी ग्रुप एस का था। अब यहाँ पर क्या आपने किया, इस केस में आपने यू को फिक्स किया और एस को आप वेरी करते रहे। मतलब ये यही दो केस होते हैं कि मतलब या तो डोमिनियन यू के बराबर होगा, नहीं, यही दो केस नहीं होगी, मतलब ये भी हो सकता है प्रॉपरली इन दो के दरमियान होगा वो, ये भी हो सकता है, बट ये दो स्पेशल केसेस है, ठीक है, ये स्पेशल केसेस है। तो ये मैं डिस्कस करूंगा ये किन सेमी ग्रुप्स की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब थर्ड पॉइंट में क्या कर रहा हूँ, थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यू को फिक्स कर रहा हूँ और एस को मैं वैरी कर रहा हूँ। मगर एस की प्रॉपर्टी क्या है, ये ऐसा सेमी ग्रुप है जो यू को कंटेन कर रहा है एज अ सब सेमी ग्रुप। जैसे आपने एग्जांपल्स ली है, जैसे आपने लिया है परमुटेशन, जो मैपिंग्स है ना वो ग्रुप है ना, तो वो सेमी ग्रुप भी है। फिर आपने लिया है फुल ट्रांसफॉर्मेशन सेमी ग्रुप। फुल ट्रांसफॉर्मेशन सेमी ग्रुप क्या है, वो परमुटेशन सेमी ग्रुप को कंटेन कर रहा है एज अ सब सेमी ग्रुप। इसी तरह से ये जो फुल ट्रांसफॉर्मेशन सेमी ग्रुप है, इट्स अ सब सेमी ग्रुप ऑफ पार्शियल मैपिंग्स, है ना, ये भी आपने किया है। और पार्शियल मैपिंग्स जो है विच इज अ सब सेमी ग्रुप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, BX। तो ये जो है आपके पास TX इज अ सब सेमी ग्रुप ऑफ टू सेमी ग्रुप्स, one is a partial semigroup and second is the semigroup of binary operations। तो आपके पास बहुत सारे सेमी ग्रुप्स होंगे जो U को कंटेन करेंगे एज अ सब सेमी ग्रुप। तो आप सारे सेमी ग्रुप्स लोगे जो U को कंटेन करेंगे एज अ सब सेमी ग्रुप। अगर फिर प्रॉपर्टी आपको ये मिलेगी हर किसी सेमी ग्रुप के लिए, इन अदर वर्ड्स ये इस एस पर एक्चुअली डिपेंड नहीं हो रहा है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एस। आप कोई भी एस ले लो, या हमेशा यू के बराबर ही आ रहा है। उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे यू इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड, यू इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड। आपको ये समझ आ रहा है, यू इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है, आप दोनों फिक्स करो यार, ये पर्टिकुलर सेमी ग्रुप्स है यू एंड एस विथ यू एज अ सब सेमी ग्रुप ऑफ एस, such that dominion of u in S is equal to u, then we say u is closed in S. But if you vary this containing semigroup S, which contains this u as a sub semigroup, if you take all the semigroups such that u is a sub semigroup of S with this property, dominion of u in S is equal to u, then in that case we say u is absolutely closed. Now we have fourth property. Fourth ये है, इसमें हमें मॉर्फिज्म फिक्स करना है ना। हाँ, मॉर्फिज्म तो वही है, मतलब डेफिनेशन आपको वही देखनी है, मतलब डोमिनियन का मतलब वही है, मॉर्फिज्म आपको डोमिनियन से देखिए, यू तो है ही इसका सब सेमी ग्रुप डोमिनियन का, है ना। अब आपको रिवर्स इंक्लूजन चाहिए, ये डोमिनियन यू का सब सेमी ग्रुप होना। इन अदर वर्ड्स आपको डोमिनियन में कोई एलिमेंट लेना, आपको प्रूव करना है वो यू का ही एलिमेंट है, तो वहां पर तो आपको मॉर्फिज्म का रोल प्ले करना है। मतलब डी आपने डोमिनियन में लिया, हाँ यस, नहीं मॉर्फिज्म फिक्स नहीं रहेगा। आप फॉर ऑल मॉर्फिज्म्स बीटा एंड गामा फ्रॉम S to T सच दैट u बीटा इक्वल टू u गामा इम्प्लाइज d बीटा इक्वल टू d गामा, वो फिक्स नहीं रहेगी, वो फिक्स नहीं रहेगी। ऐसे में सर हमारे कोई ऐसा u एग्जिस्ट कर रहा है सर? हाँ, वो मैं आगे बता, फिलहाल मैं सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको, वो मैं आगे लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में भी आप u को फिक्स करोगे और S को आप वैरी करोगी, S इज एनी सेमी ग्रुप कंटेनिंग u एज अ सब सेमी ग्रुप। अगर प्रॉपर्टी ये आपको मिल जाएगी, डोमिनियन ऑफ u इन S इज नॉट इक्वल टू S,
where S is any semigroup containing U properly as a sub semigroup. ठीक है, U properly as a sub semigroup. If the dominion of U in S is not equal to S for any semigroup S containing U as a sub semigroup but a proper sub semigroup, then we say this U is saturated. U is saturated. तो ये थी 4 डेफिनेशंस ना डोमिनियन के रिलेटेड. Dominion of U in S is not equal to S for any semigroup S containing U as a proper sub semigroup. अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग क्या है. इंटरेस्टिंग ये है, if U is absolutely closed, if U is absolutely closed, then U is saturated. Then U is, can you prove this? Any semigroup which is absolutely closed is always saturated. Is always saturated. So let us see this. So U is absolutely closed. We show that U is saturated. So for this you take now you have प्रॉपर सब ग्रुप लेना हाँ प्रॉपर, वहाँ पर प्रॉपर सब सेमी ग्रुप लेना है. ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर लेना है. तो आप लोग लेट एस बी, आपको प्रूव करना यू इज सैचुरेटेड. लेट एस बी एनी सेमी ग्रुप containing U properly as sub semigroup, as a sub semigroup. We show that, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना U सैचुरेटेड है. हमें प्रूव करना डोमिनियन ऑफ U इन S इज नॉट इक्वल टू S. ये आपको प्रूव करना है. यही है ना डेफिनेशन इसकी. तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, वी है हम चेक करेंगे डोमिनियन क्या है. वी हैव डोमिनियन ऑफ U इन S is equal to U. Why? Because U is absolutely closed, and this U is strictly contained in S, because U is a proper subsemigroup of S. So that means this dominion is not equal to S, because it is equal to U and U is properly sits inside S. So which ये मतलब एब्सोल्युटली में भी प्रॉपर ही होना चाहिए. नहीं, एब्सोल्यूट में प्रॉपर नहीं. एब्सोल्यूटली में आपको कोई भी सेमीग्रुप लेना है. तो एक्चुअली वहाँ पर भी हम प्रॉपर ही कैसे, क्योंकि जो यू एस के बराबर होगा ना, वहाँ पर तो डोमिनियन यू के ही बराबर होगा ना. यस सर वही कह रहा हूँ ना. मतलब वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर सैचुरेटेड में ये रेस्ट्रिक्शन है. सैचुरेटेड में ये रेस्ट्रिक्शन है. वहाँ पर कोई भी सेमीग्रुप एस कंटेनिंग यू, ये प्रॉपर भी हो सकता है और प्रॉपर भी होता है. ये यू एस के बराबर, उसके इसमें तो ट्रिवियल ही है, मतलब उसके इसमें ट्रिवियल ही है इसके बराबर. बट इन केस ऑफ सैचुरेटेड यू मस्ट टेक प्रॉपर सेमीग्रुप. ओके, इन केस ऑफ एब्सोल्यूटली क्लोज्ड इट्स नॉट नेसेसरी. सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूटली क्लोज्ड एंड सैचुरेटेड. ओके, अब हम एग्जांपल्स पर आ जाएंगे. तो आपने देखा जो भी सेमी ग्रुप एब्सोल्युटली क्लोज्ड होगा वो क्या होगा, वो हमेशा सैचुरेटेड होगा. अब हम एग्जांपल्स पे आ जाएंगे. जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी ना, हाँ पेज ये वाला. यस सर, एक मिनट. हाँ साहब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, मैं आपको बाद में लेक्चर भी भेजूंगा ये. ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप पूछ सकते हो. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. ठीक है. यस सर, ठीक है. ओके, तो एग्जाम्पल पर हम आ जाएंगे. सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो है ना डोमिनियन, ये हमने कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स में लिया है. क्या लिया है, कैटेगरी ऑफ, मतलब यहाँ पर सिर्फ सेमी ग्रुप्स है. जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सेमी ग्रुप्स है, और जो मॉर्फिज्म्स है वो सेमी ग्रुप मॉर्फिज्म्स है. ओके, तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आपको ट्रीट करने हैं वो सेमी ग्रुप से. तो इस कैटेगरी में आप ग्रुप्स भी ले सकते, बिकॉज एवरी ग्रुप इज अ सेमी ग्रुप. सो लेट जी बी ए ग्रुप. लेट, या मैं ऐसे इसको लिखूंगा, एवरी ग्रुप इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड. एवरी
every group is absolutely एक्चुअली इसमें यही यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी है, तो आप देख सकते हो आगे ये कितना इंटरेस्टिंग है. एवरी ग्रुप इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड. इसको हम कैसे करेंगे? लेट जी बी ए ग्रुप. लेट जी बी ए ग्रुप. आपको प्रूव करना जी एब्सोल्युटली क्लोज्ड है, तो इसके लिए आपको क्या करना, आपको कोई भी सेमी ग्रुप लेना है जो जी को कंटेन करे एज ए सब सेमी ग्रुप. एज ए सब ग्रुप भी कंटेन करेगा, बट वी आर इन द कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स, तो वह हम उसी की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे. ओके, सो लेट एस बी, मगर ये आपको ख्याल रखना कि जी एक्चुअली ग्रुप है. क्या है? ये सेमी ग्रुप भी है और ग्रुप भी है. सो लेट एस बी एनी सेमी ग्रुप. लेट एस बी एनी सेमी ग्रुप containing G as a sub-semigroup. As a sub-semigroup. So we show that dominion of G in S is equal to G. ये आपको प्रूव करना है. मगर इसको प्रूव करने के लिए मतलब अब आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली प्रूव करना है अगर डोमिनियन में कोई भी एलिमेंट आप लोगे वो जी में चला जाए. जी के एलिमेंट्स तो सारे डोमिनियन में है ही, क्योंकि आपका जी यहाँ पर यू है एक्चुअली है. आपका जो यू है ना वहाँ पर डेफिनेशन में वो यहाँ पर जी है इस एग्जाम्पल में. तो इसको करने के लिए इस्बेल ने एक थ्योरम दी है जिसको हम फिलहाल डिस्कस करेंगे, बट उसको प्रूव करने के लिए हमें एक्शन, सेमी ग्रुप एक्शन डिफाइन करना है. तो इस लेक्चर में जितना भी हो जाएगा मैं वो कर दूंगा. ठीक है, फिलहाल मैं उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूंगा, वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा. आपको बात समझ आ रही है? जो इस्बेल ने जो थ्योरम दी है ना वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा. तो इस्बेल की थ्योरम क्या है, तो इसको हम यहाँ ही रखेंगे फिलहाल. इसको आपको प्रूव करना है. तो व्हाट्स द थ्योरम ऑफ इस्बेल? तो इस्बेल की थ्योरम ये है, Isbell's zigzag theorem. तो थ्योरम ये है, let u be a sub semigroup of S and D belongs to dominion of U in S. ठीक है, D डोमिनियन का एलिमेंट है. एक्चुअली इस्बेल ने क्या किया, इस्बेल ने डोमिनियन के एलिमेंट्स को कैरेक्टराइज किया है. इसने मॉर्फिज्म को हटा ही दिया समझो. अब आपको मॉर्फिज्म का यहाँ पर मॉर्फिज्म नहीं लिखनी आगे ना, जो अभी आप प्रूफ्स करोगे रिगार्डिंग दिस डोमिनियन आप इस्बेल की थ्योरम यूज करोगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम. तो यहाँ पर अब देखिए, आप जब आप डोमिनियन का एलिमेंट लोगे ना तो आपको क्या लेना, आपको मॉर्फिज्म भी लेनी है. आपको वो बीटा का मॉर्फिज्म देनी है, सच दे एग्री ऑन द एलिमेंट्स ऑफ यू. आपको फिर वो डी पर भी एग्री कर रही है, फिर डी को देखना कि डी कहाँ चला जाएगा. बट इस्बेल ने क्या किया, इस्बेल ने देखो इस्बेल की थ्योरम क्या कह रही, डी बिलोंग्स टू डोमिनियन देन डी बिलोंग्स टू यू. या तो डी यू में होगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है, और डी हैज the following characterization. You can write here D has the following factorization. D has the following factorization. इस zigzag इसको क्यों कहते हैं, आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा. D has this factorization. This D it's equal to u naught x1. u naught u के एलिमेंट्स है, यूज जो है ना वो u के एलिमेंट्स हो गए, और जो मैं x यहाँ पर लिखूंगा वो s के एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, d इज इक्वल टू u naught x1 एंड दिस u naught it's equal to
sorry, I will write here y instead of x here. So I will write here y, u naught y1, and u naught is equal to x1 u1. Now look at this, d is equal to u naught. ये u naught जो यूज के एलिमेंट है ना, वो एक किस्म की जिगजैग, पहले u naught यहाँ था, ये यहाँ चला जाता है. अब ये u naught के फिर से फैक्टर्स आ रहे x1 u1, फिर ये u1 वापस चला जाता है. u1 is equal to not u1, it's here u1 y1. okay, u1 y1 is equal to, ये u1 वापस चला जाता है. it's like ये ऐसे जाता है फिर वापस आ जाता है. u1 y1 is equal to u2 y2. अब क्या होता है, अब u2 आगे चला जाता है, क्योंकि पहले u naught यहाँ जाता है, u naught फिर u1 में कन्वर्ट होता है विद दिस फैक्टराइजेशन, और फिर u1 यहाँ चला जाता है, u1 y1 इसकी नई फैक्टराइजेशन मिलती है u2 y2. अब u2 आगे चला जाता है और यहाँ से x1 नीचे आता है, x1 u2 इक्वल टू, ये इंडिसेस है ना, ये इंक्रीज होते हैं, x2 u3. और जनरल स्टेप में आपको क्या मिलेगा, अब क्या आ जाएगा, अब u3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आपने देखो ऊपर वाले स्टेप में क्या किया, y1 नीचे आ गया और ये u1 नीचे आ गया. अब यहाँ से u3 नीचे आ जाएगा और इसका y2 नीचे आ जाएगा. तो यू कैन सी अब जो जनरल स्टेप होगा वो इस टाइप का होगा, u2i माइनस 1. यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स होगी, आप देख सकते हो, ये u1 यहाँ चला जाता है, फिर u3 यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर u5 आ जाएगा, फिर वो u5 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा yi इज इक्वल टू, अब इसका इंडेक्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है बाय 1, u1 u2 में कन्वर्ट हो रहा है, y1 y2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये u2i माइनस 1 ये बन जाएगा u2i, और yi बन जाएगा yi प्लस 1, और इसके बाद ये u2i यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ऊपर से वाला वो xi आ जाएगा, जो इसकी स्टेप होगा ना, xi u2i विच इक्वल टू xi प्लस 1 u2i प्लस 1. और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी टू सम फाइनाइट स्टेज. तो मैं कहूँगा इस तरह से, वेयर 2 इज लेसर इक्वल टू i लेसर इक्वल टू m माइनस 1. और जो इसके बाद वाला जो स्टेप आ जाएगा वो क्या होगा, अब जब मैं i को m माइनस 1 दूंगा तो यहाँ पर ये जो u2i प्लस 1 है, इट विल बिकम u2m माइनस 1. वो u2m माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर जब मैं इस yi प्लस 1 में i का वैल्यू m माइनस 1 दूंगा, यहाँ पर ym आ जाएगा लास्ट स्टेप में ना, जब मैं m माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा इस इक्वेशन में, जब मैं m माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, यहाँ पर ym माइनस 1 होगा, यहाँ पर ym होगा, और यहाँ पर आपके पास, मैं इसको ज़रा इससे शो करूँगा, अगर आपको ये नज़र आ रहा है मैंने कहाँ पर ये कर रखा है, ठीक है. देखिए, तो ये m माइनस 1 जब मैं यहाँ थ्रू आउट सब्स्टिट्यूट करूँगा ना, i इक्वल टू m माइनस 1, आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, u2m माइनस 3, क्योंकि आपने m माइनस 1 लिया, u2m माइनस 3 ym माइनस 1 इज इक्वल टू u2m माइनस 2 ym, और यहाँ पर होगा xm माइनस 1 u2m माइनस 2, और यहाँ पर होगा xm u2m माइनस 1. अब ये u2m माइनस 1 नीचे आ जाएगा, और इसका ये यहाँ पर जो ym था ना वो नीचे आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप ये होगा आपके पास, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा u2m माइनस 1 ym, और यहाँ पर ये खत्म होगी, ये इसके आगे फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ u का एलिमेंट बन जाएगा, से u2m, और यहाँ पर जो आपके पास है xm है, और ये u2m आगे चला जाता है, u2m ये फाइनली d पर ही खत्म होता है, मतलब d से स्टार्ट होता है d पर खत्म होती है. ये जो है ना एक किस्म की जिगजैग आपको मिल रही है, ये d से आपने स्टार्ट किया और d पर खत्म हो गई. मैं m का वैल्यू फिक्स करूँ, सपोज मैंने m का वैल्यू सपोज मैं 3 लूँगा, से आई विल चूज m इक्वल टू 3. इसमें i ग्रेटर इक्वल टू 2 है, क्योंकि आपको अब यहाँ पर जो स्टेप है ना ये u3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि u1 तो ऊपर आपने लिखा ना, u1 y1 इक्वल टू u2 y2. अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो u3 y2 होगा, तो i जो स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा इसमें. ओके,
join again. Start.